Till yesterday night, I was asking God to give some word. Uh, till last night, I didn't receive anything. कल रात तक मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि मुझे कुछ वचन से बात करे, पर कल तक परमेश्वर ने कुछ वचनों से बातें नहीं की। And evening, as I was walking down the market, और कल शाम जब मैं मार्केट में ऐसे ही चल रहा था, through Palm Beach Road, there was a bus going written STF. उस पाम बीच रोड के उस जगह पर ऐसे एक बस पर लिखा हुआ था STH, STF, a Special Task Force. स्पेशल टास्क फोर्स। So I think my whole life, that Special Task Force, what they do is like the whole time they do mock drills and parades and flag march. जो स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं वो कुछ अनहोनी चीज़ें, यानी कि कुछ स्पेशल टास्क करते हैं, वो मॉक ड्रिल्स करते हैं। They are deployed when there is some emergencies or some circumstances. अगर कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कुछ इमरजेंसी हो तब उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। And today now we know that there is an emergency. और आज जैसे आप जानते हैं कि हमें इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है। Our senior pastor is not here. या हमारे पासवान नहीं है यहाँ पर, Associate pastor is not here. हमारे दूसरे पासवान भी नहीं है हमारे पर। And I don't know. I mean, like, I just want to tell pastor, धक्का क्यों मारा मुझे? Well, anyway, I just want to thank God for this privilege. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से अवसर के लिए। If you have come here with an expectation that you will hear like Pastor Legend, अगर आप ये सोचकर आए कि आप हमारे आत्मिक पिता के जैसे सुनेंगे, I would say that you will be royally discouraged. मैं कहना चाहता हूँ कि आप बहुत निराश हो जाएंगे इस बात को सुनकर। But if you have come with the love of Jesus, यदि आप परमेश्वर के प्रेम से यहाँ पर आए हैं, I would say that you will never regret this day. मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कभी नहीं पछताएंगे इस बात के लिए। I want to thank God for this opportunity. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। I never tell yes to people when they ask for this task, this kind of task. मैं कभी किसी भी लोगों के लिए इस अवसर के लिए हाँ नहीं कहता हूँ। But I don't know. This time I just told my prophet that I'll do it. पर पता नहीं, मैंने अपने नबी से कहा कि मैं इस चीज़ के लिए हाँ कहता हूँ। And I thank God for that. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ Because since last week he was talking to me a lot of things. He was preparing me for this moment. पिछले हफ्ता भर वो मुझे आत्मिक रीति में तैयार कर रहे थे इस वचन के लिए। And this morning, as I was preparing for this time, और आज के सुबह में इस वचन के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था, and I was late actually. और मैं काफ़ी लेट चल रहा था। And today I woke up at like 8:30 in the morning. और आज की सुबह मैं करीबन 8:30 बजे उठा हूँ। All the time I woke at 4 o'clock, but today I woke up at 8 o'clock. आज मैंने थोड़ा ज़्यादा सो लिया। And I forgot to give breakfast to my mom also. हाँ, और मैं मेरी मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं दे पाया, मैं भूल गया। But I don't know. I just rushed and did something and I gave her. और घाई गड़बड़ में मैंने कैसे भी करके उन्हें ब्रेकफास्ट दिया। And also made her the lunch for the afternoon. और मैंने मम्मी के लिए दोपहर का भोजन भी नियुक्त कर लिया। And that was the time God was speaking to me. और उस समय परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। And he was telling that you are created to make wonders. Amen. और परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि हम अद्भुत चीज़ों को करने के लिए बनाए गए। We don't have to worry about what the next thing we have to do. हमें आने वाली चीज़ों के लिए भयभीत ना होना है। It has been taken care way before when we are thinking. हमारे सोच के परे ही वो चीज़ पूरा किया गया है। I believe that I just want to share something of my personal last month, which I was like completely broke. मैं पिछले महीने अपनी स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पूरी तरीके से टूट गया था।
And there was like 2-3 bills was pending for me. और मेरे कुछ 2-3 बिल्स जो थे वो पेंडिंग थे, The electric, the gas, and the basic bills. जो घर के जो चीज़ें होते हैं उनकी छोटी मोटी चीज़ों का बिल भरना रह गया And था। because of like last 2 months it was hot, the AC was like full on, and like everything was like full on, and the bill was like it was a crazy bill. तो इस गर्मी के मौसम के वजह से सारा इलेक्ट्रिसिटी हमने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, उस वजह से लाइट का बिल थोड़ा ज़्यादा आया है। And I was just wondering, where can I get? I'm like, where from how I'll pay these bills. और मैं ये सोच रहा था कि इसके मैं भरपाई कैसे कर सकूं। And last day was like 5th of May was the last day for the bills. और 5 मई को मेरा जो बिल का डेट था वो लास्ट डेट था। 3rd May the provision came. वाह। और 3 मई को परमेश्वर ने उस चीज़ को पूरा किया। The reason I said like this is because मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ की, because whatever we are thinking and whatever we are planning, हम किसी भी चीज़ के बारे में यदि सोच रहे हैं, our needs, हमारी ज़रूरतों, our provisions, हमारे आर्थिक परिस्थिति, our health, हमारे हालातें, everything somewhere it is being done, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें परमेश्वर के द्वारा पूरी गई है, and it is on the way, और वो हमारे रास्ते पर and है, in the right time और सही समय पर we're going to receive it. हम उसे प्राप्त करेंगे। And I believe it. I want to challenge you, if there is anything that you are being praying for anything and still yet is not received, मैं निश्चय इस चीज़ को कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो नहीं पूरा हुआ है, I want to tell you with boldly और मैं आपसे ये एकदम दृढ़ता से कहना चाहता हूँ, that it has been prepared. वो बनाया गया है आपके लिए। You will get it on that right time. आप उसे सही समय पर प्राप्त करोगे। God is preparing either you परमेश्वर यदि आपको बना रहा है, or either preparing that one which is greater than what you have thought. या तो आपके लिए आपके सोच से परे परमेश्वर आपके लिए बनाना चाहता है। Amen. Amen. I thought Sister Blessy will preach a bit because she was like on fire. मैंने सोचा कि सिस्टर ब्लेसी माय वाइफ Hallelujah. Bless you, sister. That was so wonderful. आशीष करना चाहते Well, we will get into the word. हैं। हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। As I get into the word, I just want to pray a bit. हम प्रार्थना के वचन के पहले प्रार्थना में आगे जाएं। Holy Spirit, help us to give this word as you want, Lord Jesus. परमेश्वर इस वचन को जैसे आप देना चाहते हैं परमेश्वर, वैसे हम रिसीव करने के लिए तैयार हैं। I know you have given me bits and pieces of this word. परमेश्वर आपने मुझे टुकड़ों में परमेश्वर इस वचनों को दिया है लॉर्ड। To be honest, I am a little bit nervous, Lord. मैं थोड़ा नर्वस हूँ, But I know, Father God, that when you speak, it's not about nervousness or weakness. परमेश्वर मैं जानता हूँ जब आप बात करते हैं परमेश्वर, सारी कमियाँ, सारे परेशानियाँ, I just want to be available. मैं आपके लिए परमेश्वर यहाँ पर खड़ा हूँ। I just want to be that channel of blessing to these people. मैं वो स्तोत्र बनना चाहता हूँ परमेश्वर, जिससे तेरी महिमा को, तेरे आशीषों को मैं परमेश्वर दे सकूँ। Reveal that word more to me, Lord Jesus. आपके वचनों को परमेश्वर आप हमें प्रकट करें। Help me to connect those bits and pieces into a big picture of what you want to show us, Lord. उन छोटे छोटे परमेश्वर वचनों को परमेश्वर एक बड़े परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर आप मुझसे बातें। Thank you so much. धन्यवाद देते हैं। In Jesus' name I pray. Amen. 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 Are you all excited? Yes. Hallelujah. Well, let us get into the word. I want to read Luke chapter 9, verse 10 to 17. We all know this story. हम सभी इसी कहानी को जानते हैं। If we were Christians from the beginning, I know this was a story from the childhood we heard about. यदि हम परमेश्वर में पहले से ही है तो आप इस बात को जानते हैं कि हमारे संडे स्कूल के द्वारा से ये कहानी हम सुनते हुए आए हैं। And if you have heard pastors at least once in their lifetime, they'll speak this story.
आपने सुना होगा कि हर एक पासवान एटलीस्ट एक बार अपने जीवन में इस वचन को या इस कहानी को सुनते हुए आपने सुना होगा. And it's very common. I mean, like we have heard hundreds of times this message, maybe. हमने कई बार इस कहानी को, इन वचनों को सुना होगा. So before getting into this thing, I just want to give a brief of what happened before. इस वचन के द्वारा या इस प्रचार में आगे बढ़ने से पहले, इसके पहले जो हुआ है, इसको मैं कुछ छोटे से शब्दों में कहना चाहता हूँ. So this was like Jesus sending the disciples, परमेश्वर अपने चेलों को भेज रहा है, giving them the power to cast out demons and heal the sick. उन्हें रोगों को चंगा करना और जो दुष्टात्मा है उनको भगाने के लिए परमेश्वर अपने चेलों को वो शक्ति देता है. And the disciples go out और वे चेले निकलते हैं and they do all these things और वे सारे चमत्कारों को करते हैं and they come back और वे फिर परमेश्वर के पास लौट आते हैं. because क्योंकि Herod the king, हेरोद राजा he comes to know about the disciples going to these different places and performing miracles. और इस बात को हेरोद राजा को पता चलता है कि परमेश्वर के जो चेले हैं वो सुसमाचार और चमत्कारों को कर रहे हैं. And the people was thinking और लोग इस बात को सोच रहे थे that they might be John the Baptist, और वो शायद यूहन्ना सुसमाचार बपतिस्मा देने वाला, they might be Elijah, वो एलाइजा हो सकता or है, they might be the other prophet risen from the dead. वो कई और नबिया हो सकते हैं. Because Herod was wondering, I'm like, I have beheaded John the Baptist, और हेरोद राजा जो है वो सोच रहे थे कि मैं तो उन्हें जानता हूँ and who are they? और वो कौन है. So when the apostles and the disciples came to know, और जब ये बात चेलों को पता चला they ran from that place and came to Jesus. और वो उस जगह से भागकर वो परमेश्वर के पास लौटे. And then Jesus, they all went to a different place called Bethsaida. और परमेश्वर और उनके चेले बतसेदा नामक इस जगह पर गए. And the crowd came to know, और लोगों को पता चला and they followed Jesus too. और वे परमेश्वर के साथ हो चले. Here, I just want to say something. यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ. As we are representing Christ, जैसे हम परमेश्वर को जता रहे या बता रहे we हैं, have already given the power and the authority हमने परमेश्वर को उस शक्ति और हमारे जीवन पे अथॉरिटी दे दिया है to heal the sick, रोगों को चंगा करना, to cast out demons. दुष्टात्माएं भगाना. I'm not telling that apostles or preachers or teachers have, but each one of you having that. मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेरित या परमेश्वर के बड़े दास, पर हम सभी को परमेश्वर ने ये वरदान दिया है. And from today onwards, I want to say this, और आज से मैं ये कहना चाहता हूँ that use this इस चीज़ को इस्तेमाल करें, because you are created to multiply. क्योंकि हम इस चीज़ के लिए रचे गए कि हम बढ़े. Amen. Amen. So as they come down, जैसे वे नीचे उतरे, they started. Jesus started preaching परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाना शुरू and किया healing the sick. और रोगों को चंगा किया. And it is a crazy thing और ये एक अचंभित सी बात है that there are 5,000 people. और 5,000 से भी ज़्यादा लोग हैं It's just 5,000 men. और सिर्फ 5,000 पुरुष है There is no count of the women and the kids. और वहाँ पर स्त्रियों का और बच्चों का कोई वर्णन नहीं किया गया है. And I was just wondering, और मैं जस्ट सोच रहा था how did he do that? कि परमेश्वर ने कैसे किया. 5,000 men means, if you know that we did a SOAR meeting, अगर आप जानते हैं हमने एक सोर मीटिंग किया था, that is like 12 times bigger the hall. और वो जो जगह थी सोर की वो उससे 12 गुना बड़ी थी. That is like, I don't know if I'm standing here, how did his voice reached till the end. और मैं ये नहीं जानता कि उन 5,000 लोगों तक परमेश्वर की आवाज़ कैसे पहुंची. But everyone was listening to that word. पर हर कोई परमेश्वर की बातों को सुन रहा Jesus था. at that time was very influential guy in that city.
और उस समय परमेश्वर एकदम नामचीन थे. More than that, his words were so powerful उनसे ज़्यादा उनके वचनों में, उनके बातों में शक्ति थी. that people get attracted and they used to sit for hours and hours to hear him. और परमेश्वर की बातों को सुनकर लोग घंटों तक बैठकर उन्हें सुना करते थे. And in between, और बीच में as Jesus was doing all these signs and wonders, और बीच में जब परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार कर रहा था, just there were like some people like me और कुछ लोग मेरे जैसे, who said like, अरे यार भूख लगी है, अरे यार हमें भूख लगी है. और लोगों को भी भूख लगा रहेगा. और People also will be hungry. लोगों को भी भूख लगा होगा. So why don't we send them back? क्यों ना हम उन्हें फिर से भेज दे. क्योंकि मेरे जैसे लोग थे वहाँ पे जिसके पास पैसा नहीं है, क्या करेगा करके. तो they were, as they were saying to Jesus, जैसे वो लोग ये परमेश्वर से कह रहे थे, Jesus looked at the people परमेश्वर ने लोगों की ओर देखा and he said, और उन्होंने कहा, you feed them. आप उन्हें तृप्त करें. He told the disciples उन्होंने अपने चेलों से कहा that you feed them. आप उन्हें खिलाएं. And if I was there, if अगर मैं होगा तो वहाँ पे I would have been had a fight with Jesus. यदि मैं उस स्थान पर होता, शायद मैं परमेश्वर से लड़ लेता. Though I have seen all these wonders and miracles, I would have said that क्या येड़ा आदमी है यार तू. यदि मैंने उस चीज को और उन चमत्कारों को देखा है, फिर भी मैं परमेश्वर से इस बात को कहता. 5,000 people and how can we feed them? इतने सारे लोग, जो अधिक संख्या में 5,000 से भी ज्यादा लोगों को मैं कैसे भोजन दे सकता हूँ या उन्हें खिला सकता हूँ. Isn't that crazy? क्या ये असंभव बात नहीं है? And here again Jesus says, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, ask them to sit in the group of 50. और परमेश्वर उनसे कहता है कि 50 लोगों के ग्रुप में वे बैठे. And I know, we have conducted many meetings, big meetings. आप जैसे कि हम जानते हैं कि हमने बहुत सारे मीटिंग्स किए हैं. And when we say like लाइन में आओ करके, और जैसे हम कहते हैं कि आप लाइन में रहे, I know फूड काउंटर के वहाँ एक लाइन नहीं लग सकता कभी भी. हाँ ना, near the buffet there is no line at all. हाँ, जहाँ खाना मिलता है वहाँ पे लाइन नहीं होता. But here it was so sudden. और यहाँ पर वो एकदम अचानक से हुआ. Jesus tells them, make them a group of 50. परमेश्वर कहता है कि आप 50 लोगों का एक ग्रुप बनाएं. And the disciples they disperse. और जो चेले हैं वो डिस्पर्स होते हैं. And they says like 50, 50 people make a group. और वो लोग कहते हैं कि आप सभी 50 लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाएं. And it was like top 50 group. और वो अचानक से वो लोग बैठ जाते हैं सभी. And to my mind, still though I'm speaking, I cannot imagine that thing. हाँ, उस चीज़ को मैं विश्वास नहीं कर सकता कि अचानक से सारे लोग आकर के 50 के ग्रुप में बैठते हैं. But I believe it happened there. पर मैं विश्वास करता हूँ कि वो हुआ. And after sitting again, maybe disciples like me again came to Jesus. और वो लोग बैठने के बाद कई चेले परमेश्वर के पास आते हैं. Just like me. मेरे जैसे. अभी क्या? क्या? अब क्या करें? Now what? क्या करे परमेश्वर? Then as they said like, do something, find something. तो परमेश्वर अपने चेलों से कहता है कि ढूंढो किसी के पास अगर कुछ खाने की चीज़ है. If you remember last week. यदि आपको यदि याद है पिछले हफ्ता. We had Jerusha. हाँ, हमारे साथ जेरूशा सिस्टर थी. She just ran to Jama. और वो प्रचार के बीच में ही वो एक जामा स्वीट शॉप है वहाँ गए. And try to find out samosa. और उन्होंने हमारे लिए समोसा का बंदोबस्त करने के लिए for everyone she bought. हमारे यहाँ जितने हैं हम सभी के लिए उन्होंने लेकर के आए. And to her surprise there was little people. और काफ़ी उनके वे आने तक काफ़ी लोग चले गए थे. And we all could had that samosa. और हम सभी ने उस चीज़ को खाया. And some samosas she could take back. और कुछ बचे हुए वे लेकर के चले गए. That time I felt sad. मुझे बुरा लगा उस समय. But today when I read this,
और जब मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ आज, I could see that blessing what she took back. मैं देख सकता हूँ उस आशीष को वो जो लेकर के गए। When she gave, जब उन्होंने दिया, she had enough to take back home Yeah. for herself. उनके पास जब उन्होंने दिया, उससे कहीं ज़्यादा उनके पास लेकर के जाने के लिए The giving matters. आपका देना मायने रखता है। When you give, जब आप देते हैं, you will never lack on anything. आप कभी भी उस चीज़ के लिए घटी नहीं होगी। I miss that girl today. आज मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। If you are hearing, bless you, girl. आज यदि आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीष करे। And they found 5 loaves and 2 fishes उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली को पाया from a small boy. एक छोटे बच्चे के द्वारा। And अगर if अभी का बच्चा होता, अगर अब इस समय का छोटा बच्चा होता, imagine that boy's tantrums and the he would have ripped off hell in this place. अगर उसके पास ये चीज़ होती तो आप जान सकते कि वो क्या कर सकता था। No matter who the guy must be, he would have abused him like anything. हाँ, अगर कोई भी चेला उनके पास जाता तो वो शायद उन्हें बहुत गालियाँ देता। But that boy gave that packet to बट the उस disciples. बच्चे ने अपने भोजन को उन चेलों को दिया And they brought to Jesus. और उन्होंने परमेश्वर के पास उस चीज़ को लाए। If I would have been there, अगर मैं वहाँ पे होता, I would have told Jesus, मैं परमेश्वर से कहता, भाई अपना सोई हो गया है, हाँ हमारा खाने पीने का बंदोबस्त हो गया है, बाकी लोग को भेज दो घर पे, बाकी लोगों को भेज दो, अपन खाएंगे, बाद में वो लोग आ जाएंगे. we'll have and they'll go back. When he got that packet, जब परमेश्वर ने उस 5 रोटी और 2 मछली को पाया, he looked up उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, and he blessed. उन्होंने उसे आशीष किया। With this, I just want to pause here, मैं इस चीज़ को यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। and I want to tell a story about a guy. मैं एक कहानी एक बंदे के बारे में कहना चाहता हूँ। A boy who was 27 years old. एक 27 वर्ष का एक बंदा, He was a very notorious guy. एक बहुत मस्ती करने वाला बंदा था। One at a time in his life, एक बार उनके जीवन में he had a trouble. उन्हें एक समस्या हुई। That guy was so notorious in this place. वो बहुत मस्ती करता था। Many people wanted to kill him. बहुत लोग उन्हें मारना चाहते थे। So one day, some people made a plan to finish this guy. और एक दिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें मारने का निर्णय किया। So he takes like there is a day, and they plan a day, and that day they take that guy to kill them. और एक दिन उन्होंने उस बंदे का प्राण लेने का निर्णय किया, उसे लेकर के गए। But this boy who is going with them is unaware of those things. और जो बंदा उस चीज़ को उनके साथ जो गया, उसे पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। So this boy and this people, they were having the booze and all those things they were having, and they were enjoying their time. और वो सभी लोगों के साथ में ये बंदा भी अपने जीवन को एंजॉय कर रहा था उस समय में, सारी नशीले चीज़ों को साथ। So once this guy, they all were drunk quite enough. जब सभी लोगों का बहुत ज़्यादा पी कर के हो गया था, this people who planned to kill this guy, और जिन लोगों ने इस बंदे की प्राण लेने की सोची थी, removed the guns, उन्होंने अपने गन्स को निकाला and they pointed on this young boy. और उन्होंने उस गन को इस बंदे की तरफ इशारे में उस गन को रखा। And this boy was like was clueless and couldn't do anything at that time. और वो बंदा एकदम अचंभित हो गया और उसे पता नहीं वो क्या कर सकता था। But this boy's parents was a prayerful parents. बट इस बंदे के जो माता पिता थे वे परमेश्वर में थे और वे काफ़ी प्रार्थना में थे। And somewhere this boy heard a word of God. और कहीं ना कहीं उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। So imagine 4 people have stick their gun and a person standing, what he can do.
आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि 4 लोगों के बीच में एक बंदा है और उसके तरफ अपने बंदूकों को सभी ने उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया है। So in our village there is a proverb, there is a saying हमारे गांव में ऐसा कहना है, that when you shoot a pig, जब आप एक सूअर को मारते हैं that is the only time he looks up. और वही एक समय है जो वो ऊपर की ओर The देखता whole है। life he is like his face is down towards the ground. वो अपनी जिंदगी भर सिर्फ जमीन के तरफ देखता हुआ ही रहता है When he get the shot, he looks up. और जब उसे कोई मारते हैं तो वो ऊपर की ओर देखता है। So that boy didn't had anything, any kind of arms or anything to do to fight against him. So he looked up. और जिस बंदे को उन लोगों ने घेर रखा था उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वे उनको हमला कर सके और उसने ऊपर की ओर देखा। And you won't believe, in 2-3 seconds, there was a confusion, and the people who wanted to kill him were confused and they were fighting each other. और उतने ही में कुछ समय में आपस के लोगों में झगड़ा होने लग गया। And that boy, just because he looked up, और उस बंदा जिसने सिर्फ ऊपर देखा, today he is able to stand here and preach to you. और वो आज आपके सामने खड़े रह करके परमेश्वर के वचन को बांट रहा है। Just as Jesus got that parcel, जैसे परमेश्वर ने उस चीज़ को पाया, he looked up, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर देखा, he blessed that, उन्होंने उस चीज़ को आशीष किया, he gave it to the disciples. उन्होंने अपने चेलों को दिया। And it was not in the hands of Jesus, it was multiplying. वो परमेश्वर के हाथ में नहीं था उस चीज़ को दुगना करे, It was in the hands of disciples, it was multiplying. वो अपने चेलों के हाथों में था कि वो चीज़ दुगना हो। And today it is 20 years in this ministry. और आज इस 20 वर्ष के सेवकाई में I am able to speak to many people. मैं बहुत सारे नौजवानों के वचनों से द्वारा बात And करता I हूँ। believe that day, that small packet which I had, I gave it, looked up and gave it to और Jesus. जो मेरे पास था मैंने उस चीज़ को परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर को दिया। And I believe that if you look up, और मैं विश्वास करता हूँ यदि आप ऊपर देखें, let me tell you, we all have that small packet. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो जो वस्तु है वो हमारे पास है, That 5 loaves and 2 fishes. वो 5 रोटियाँ जो मछली, I mean to say that 5 senses और मेरा बोलने का मतलब है जो 5 सेंसेस है and that two fishes, which is our heart and mind. और जो 2 मछलियाँ है वो हमारा हृदय और मन है। So if we give it to Jesus, that small packet of 5 loaves and 2 fishes, our senses and that heart and mind, if we can give it to Jesus, यदि हम हमारे 5 सेंसेस और हमारे मन और परमेश्वर को हमारा दिमाग दे, you will see wonders in your life. आप मैं निश्चय कहना चाहता हूँ कि आप बहुत से अचंभित चीज़ों को आपके जीवन में देखेंगे। I am challenging you. मैं आपसे ये चैलेंज करता हूँ, If you have not given, try it. यदि आपने नहीं दिया है आप परमेश्वर को दे करके देखें। Try to give your hand. परमेश्वर को अपना हाथ देना Try चाहिए। to give your eyes. आप परमेश्वर की आपके आंखों को Try दें। to give your mouth. आप परमेश्वर को अपने मुंह को दें। Try to think what he thinks. हम कोशिश करें कि परमेश्वर क्या सोच रहा है। Try to see what he wants to see. परमेश्वर जो दिखाना चाहता है कोशिश करें कि हम उसे देखें। Try to speak what he wants to say. हम उन चीज़ों को बोले जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। Try to smell what the aroma of his. हम उस चीज़ को सूंघने की कोशिश करें जैसा परमेश्वर स्मेल करता है। I would believe that the blessings of you will be multiplied. मैं आपसे निश्चय कहना चाहता हूँ उन सारी आशीषों में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। Because once again I want to tell you that you are created to multiply. और मैं आपसे निश्चय कहना चाहता हूँ कि आप बनाए गए हैं बढ़ने के लिए। So as they were distributing, और जैसे वे लोग उस चीज़ को दे रहे थे, again I want to put me in that situation. फिर से मैं उस बात में अपने आप को डालना चाहता हूँ। Jesus breaks the bread परमेश्वर रोटी तोड़ता है and he gives to the disciple. और वो अपने चेलों को देता है। एक पैकेट मेरे हाथ में भी देता है। एक हमारे हाथ में है। And then
I go, अबे ये क्या है यार? और मैं जा कर के सोचता हूँ कि ये क्या है। 5,000 people 5,000 लोग हैं and this small packet. और ये छोटी सी चीज़ 5 मछली 2 रोटियां। But when he started to give one, तो जब वो लोगों को देने लगे, when he started to empty himself, जब वो अपने आप को खाली करना लगे, it started to multiply. और वो बढ़ता ही गया, It started to वो increase. बढ़ता ही गया। You need to unlearn things. हमें चीज़ों को देना सीखना है। You need to unlearn things. हमें We खाली need to, करना आता हाँ खाली, है, okay, अपने आप को fine. खाली करना आता है So that he can put his increase in our life. कि वो अपने ओर से हमें भर सके। Start giving out. हम देना शुरू करें। Start giving out your time. हम परमेश्वर को हमारा समय देना शुरू Start करें। giving out your talent. हम हमारे जो टैलेंट है उसे परमेश्वर Start को giving out your skills. आपके जो स्किल्स है हम परमेश्वर को दें। You will be wondering. आप अचंभित रहेंगे, You won't, but you will never regret. लेकिन आप कभी उस बात का बुरा नहीं मानेंगे। I want to tell you that do it from now. मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप इसी समय से शुरू करें। And they were wondered. और वे सभी एकदम आश्चर्यचकित रहे। Disciples were wondered. वो लोग एकदम आश्चर्यचकित And रहे। since last night, I am wondering. और कल रात से मैं भी अचंभित हूँ। Things are multiplying. चीजें बढ़ रही है। Amen. I never thought that I would stand here and preach like this. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर खड़े रहकर वचन बांटूंगा। And when Shailesh was finishing his service and Blessy was coming here, जैसे शैलेश ब्रदर आराधना खत्म कर रहा था और no, before Blessy coming here, ब्लेसी आने के कुछ टाइम पहले I went to the toilet. मैं वॉशरूम चला गया। And I was wondering, अबे क्या क्यों हाँ बोला? And I was thinking, like, you know, and Blessy came here and Blessy started preaching and I was praying, like, you know, मैं बच्चे को उठाया and I was praying, अरे let her do it, let her do it, let her do it. मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ये बढ़ता चलते रहे। No, it wasn't that I said. Then I was watching the time. और फिर मैंने समय को देखा I said like 1 hour I had to speak. और मैं सोच रहा था कि मुझे 1 घंटा बोलना है I don't know how I will be able to. और मैं नहीं जानता कि ये कैसे मैं शेयर करूं। I can be distracted very fast. मैं बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। Anyway, coming back to the wonders of disciples. और फिर से हम आते हैं चेलों के द्वारा किया गया चमत्कार। So the 17th verse says, और 17वां वचन कहता है they all ate as much as they wanted. उन्होंने जितना चाहिए था उतना वो लोगों ने खाया। And afterwards the disciples picked up 12 baskets and leftovers. और उसके बाद चेलों ने 12 टोकरियां लेकर के वो चले गए They all ate. और उन सभी ने खाया। There was nobody was left hungry. ऐसा कोई नहीं था जो भूखा रहा। 8,000, 9,000 people. 8-9 हजार लोग, 5 loaves and 2 fishes. 5 मछली 2 रोटियां। Isn't it great? क्या ये बड़ी बात नहीं है? Because क्योंकि they were created to multiply. क्योंकि वे बनाए गए थे दुगना होने के लिए। So with this word, इस वचन के द्वारा I just want to say once again मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ that we all are created to multiply. हम सभी दुगना होने के लिए हमारी सृष्टि हुई है। Start giving out. हम परमेश्वर को देना सीखें। Don't hold back. हम किसी भी चीज़ को अपने पास रखे नहीं। You won't realize how God will surprise you. आप इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष कर सकता है। I want to challenge you one more thing. मैं आप सबसे फिर से कहना चाहता हूँ, If you think that it is impossible, अगर आप सोचते हैं कि असंभव है, if you think that it won't happen, यदि आप सोचते हैं कि वो नहीं होगा, I always used to think, मैं ऐसे ही सोचता था। gray hair, हाँ, no hair, नो है, what I'll do. क्या करूँगा मैं? But पर परमेश्वर it create wonders.
उन्होंने मेरे जीवन में We चमत्कार create किया। wonders. हम We multiply. हम दुगना कर सकते, We gonna multiply. हम दुगना करेंगे। I want to say one more thing that my mom 3 weeks before my mom had her left side went numb. मैं 3 हफ्ते पहले मेरे मम्मी का लेफ्ट साइड जो बॉडी है का जो हिस्सा है वो एकदम नम हुआ था। Thank God that sometimes we are broke. धन्यवाद देते परमेश्वर कि हम कुछ समय के लिए टूटते हैं That is the only time we go to God. और वही समय होता है जब हम परमेश्वर के पास जाते That is a reason to come to God. हैं। और कई बार वो हमारा रीज़न भी हो जाता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। And it was on a Friday, और वो शुक्रवार का दिन था and I was praying that Saturday, Sunday church and lot of things are happening, so nothing should happen. और मैं ये सोच रहा था कि शनिवार इतवार के दिन बहुत सी चीज़ें हैं, आराधना है तो ऐसा कुछ ना हो। That people won't be coming. हाँ, और लोग ना आए। लोग आएंगे नहीं, कुछ होगा तो। ओके, ऐसा अगर कुछ होगा तो लोग नहीं आएंगे। I'm sorry। तो I was asking God like ना मंडे के बाद कुछ होना। हाँ, और मैं ये सोच रहा था कि अगर कुछ हो गलत तो वो मंडे के बाद हो। तो but God you know his plans are different. और परमेश्वर की जो हमारे जीवन को लेकर चीज़ें हैं वो अलग है। I was thinking lot of things. और मैं बहुत सी चीज़ें सोच रहा I था। went to some of my doctors who are my friends, और मैं अपने कुछ मित्रों के पास गया जो डॉक्टर्स and हैं। they said if you take only MRI then I'll I'll come home and see your mom. और उन्होंने कहा अगर आप MRI करोगे तभी हम आकर के चेक कर सकते And I have a bad experience of going to the hospital. हैं। और मेरा एक बुरा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल के साथ। So I never my first choice is not a hospital. और मैं यही सोचता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाए। So I told mom that we'll sit and we'll start praying. और मैंने मम्मी से कहा कि हम बैठकर प्रार्थना करें। So I switched off my phone, मैंने अपना फ़ोन बंद किया and then me, my younger sister and my mom, we started praying. और मैं, मेरी छोटी बहन और मम्मी हम प्रार्थना करने लगे। It was Saturday. It was like it went more worse. और सैटरडे के दिन मम्मी का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हुआ। But we were praying. और हम प्रार्थना में थे। And again Sunday till afternoon she was okay. और संडे आफ्टर दोपहर तक मम्मी ठीक थी। Again it went worse and like her mouth and all she couldn't speak. और उसके बाद थोड़े देर के बाद वो फिर उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ी और वे बोल नहीं पा रहे थे। I looked up और मैंने फिर परमेश्वर की ओर देखा। and by Monday और सोमवार के दिन she started walking. और वे फिर चलने को लगे। Still she has a problem, उन्हें अभी भी तकलीफ है। but now she can use the washroom and things like that. हाँ, वे अभी चल फिर सकते हैं। Only thing that she cannot climb up and down. हाँ, सिर्फ वो ऊपर नीचे नहीं चल सकते पर घर के अंदर चलते हैं। I thank God for that मैं परमेश्वर का धन्यवाद because I देता know हूँ। if she goes down she will be again the kitchen queen. हाँ, यदि वो जानते हैं कि अगर मम्मी नीचे आएंगे तो उन्हें पता है कि वो किचन में बहुत काम कर सकते I just want to give her rest हैं। at और this मैं time. चाहता हूँ कि वो सिर्फ आराम करे अभी इस समय। And God helped me परमेश्वर ने मेरी सहायता की so that I can help her. कि मैं उनकी सहायता कर सकूं। And this was the time of me, mom, and my sister really coming together and talking to each other, and a lot of things we were having in conversation. और ये ऐसा समय था जब हम परिवार एक होकर के बहुत सारी बातें करने लगे। There are some things which happen in और our ऐसी life चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में होती है that restores our family. जो हमारे परिवार को एक करने में जुड़ती है। If we crib and whine about the situation, यदि हम परिस्थिति को लेकर के अगर बातें करें या उसके बारे में ज़्यादा सोचें we will be sad and depressed and what all things और उस we can चीज़ get को into. लेकर के हम शायद निराश या एकदम टेंशन में हो जाते हैं। No matter what the situation is, चाहे परिस्थितियाँ कैसे ही क्यों ना हो, I want to say look up. मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर देखें। Just as Genesis 1:1a says, जैसे उत्पत्ति 1 कहता है in the beginning, आदि में God.
परमेश्वर, in the beginning, God. इन द बिगनिंग गॉड, यानी आदि में परमेश्वर, To every situation of in the beginning, और सारे परेशानियों के पहले make yourself that God is there. आप ये देखें कि परमेश्वर वहाँ है। Then when you read down, और जैसे आप नीचे पढ़ते हैं you will see wonders और created, जैसे आप नीचे आएंगे तो आप देखोगे परमेश्वर ने आश्चर्य काम किए। created out of void. परमेश्वर ने खालीपन में से कुछ बनाया, And that is the blessings we have in our lives. और वो आशीष है जो हमारे जीवन में है। You are created to multiply. आप बनाए गए हो फैलने के लिए, दुगना होने के लिए। You are created to multiply. आप बनाए गए हो दुगना होने के I लिए। want to sink in this word that you are created to multiply. मैं इस चीज़ में रहना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम दुगना होने के लिए बने हैं। So create wonders. तो आप बहुत सारे चमत्कारों को करें, Multiply things in your life. चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ाए। If you think finance is the weaker place, यदि आप सोचते हैं कि जो धन, जो पैसा है हमारे जीवन में सबसे कमी है हमें उस चीज़ की, give out हम उसे दे and let it be multiplied. और वो दुगना होने के लिए हम उसे प्रार्थना। If it is sickness that you are working on, यदि आप सोच रहे हैं कि वो कमजोरी या जो बीमारियां है give it up. उस चीज़ को आप दे दे, It won't multiply. वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, It will go. वो चला Your जाएगा। health will be multiplied. आपकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी होगी, Your joy will be multiplied. आपके जीवन में खुशियाँ होगी, Your relationship will be multiplied. आपके रिश्तेदारों में आपका Good. संबंध अच्छा रहेगा, Your life will be restored. आपका जो जीवन है वो पूरा होगा। With these words, I want to pray over you. मैं इस वचन के द्वारा आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। Father, we just want to thank you once again for this word, Lord Jesus. परमेश्वर, मैं आपसे फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। I just want to pray again this word over this people of you, Lord. मैं फिर एक बार इस वचन को तेरे लोगों से कहना चाहता हूँ That these people are created to multiply. कि ये जो लोग हैं परमेश्वर दुगना होने के लिए बनाए गए हैं। I pray that this word will sink in deep down in their heart. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन उनके हृदय में बसे, That they are created to multiply. कि वे लोग दुगना होने के लिए बनाए गए हैं। Father, help their hand. परमेश्वर, आप उनके हाथों को परमेश्वर आप सहायता करें, Bless their feet. उनके पैरों को आप आशीष करें, Bless their health. उनके सेहत को आप आशीष करें, Bless their family. उनके परिवारों में आशीष करें, Bless their finances. उनके आर्थिक परिस्थिति में उनके आशीष, And help them to give out. और आप उनकी सहायता करें कि वे दे सके। Help them that they won't be holding back on anything. आप सहायता करें कि वे उस चीज को पकड़े ना रखे। Help them that if there is a little thing, help them that they will let that out so that they can see wonder of you, Lord Jesus. आप सहायता करें कि जो चीज़ उनके पास है उस चीज़ को देने के लिए और उसे देकर तेरे आश्चर्य कर्म को उनके जीवन में देखने के लिए आप उनकी सहायता करें। I pray that, Father God, from this day, their lives won't be the same, Lord. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन के बाद से उनके जीवन ऐसे ही ना रहे। They will create wonders in the job place. वे अपने जो जिस भी जगह वे काम करते हैं वहाँ पर वे आश्चर्य कर्म को करें। They will create wonders in their family. वे अपने जीवन में आश्चर्य कर्म करें। They create wonders wherever they go. वे जहाँ कहीं भी जाए अच्छी चीज़ों को करें। They won't hold back, Lord Jesus. वे किसी भी बात को पकड़े ना रखे। They won't be shameful for creating wonders, Lord Jesus. वे किसी भी बात को लेकर के निंदा ना महसूस कर सके। They will multiply their finances, वे Lord. लोग बड़े और अपने आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े। They will create wonders again, Lord Jesus. वो लोग आश्चर्य कर्म को करें। Restore their lives, Father God Jesus. उनके जीवनों को आप भरें। Father God, there is nothing impossible that your word says. आपका वचन कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। From this day onwards, Father God Jesus, they will step into all those places where there seems to be impossible. आज से परमेश्वर इस समय से जो इम्पॉसिबल चीज़, जो अनहोनी चीज़ है उस चीज़ को वे परमेश्वर
महसूस कर सके परमेश्वर। Father God, you did 3.5 of years of ministry, Lord. आपने 3.5 वर्ष सेवकाई की And still 2000 years, Father God, it is spoken and creating wonders in people's life, Lord. अभी भी 2000 वर्ष से भी ज्यादा आपके वचनों से कार्य हो रहा है। And I pray that, Father God, your authority, your power, your anointing, Father God, we speak in our lives, Father God, in every walks of life, Father God. और आपसे बहने वाली आशीष परमेश्वर हम सभी के जीवनों में होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते We हैं। love you, Lord Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं। I love you, Lord Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Just want to thank you for this opportunity, Lord. धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए। Thank you, Father God, for making me this channel of blessings to people. Father. धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने इस्तेमाल किया कि मैं इनके लिए आशीष का कारण बनूं। Thank you, Father God, for every word that has been spoken through me will multiply, and multiply, Lord Jesus. धन्यवाद देता हूँ कि मेरे द्वारा जिस भी वचन को बातें किया उनमें से वे परमेश्वर बहुतायत से बढ़े। They will bring fruits, bear fruits in people's life, Lord Jesus. वे लोगों के जीवनों में एक आशीष का कारण हो सके। Thank you for the testimony, Lord Jesus. धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए। Just want to give all glory and praise to you. सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से। Amen. 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 As you go back home, I just want to say that you are created to multiply.